A very nice good morning to all of you. My name is Ankit Kumar from Standard 2 class. Present here as an anchor of today morning assembly. At first, girls Sita Rani and Anuradha Kumari from Standard 4 class. Please come on the stage. अरे सीधा उतरे, सब टेढ़ा लगल है। सबसे ज्यादा बदमाश कहता है स्कूल देखने आए थोड़ी पढ़ने आए हैं। दिमाग नाम कटवा लिए थे, अब यहाँ से कटवा लेंगे। जब इसने तो फिर स्कूल देखना है। Attendee! Attention! Attendee! Attention! Attendee! Attention! Attendee! Attention! माइक को खाली नीचे करो ना, बोलो बोतली पे बोलो। Now please join your hand and close your eyes, bow down your head to the Almighty God and be ready for the prayer in your sweetest and melodious voice. Ready for the prayer. Ready for the prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या क्या है अर्पण, हम ये सोचे कि क्या क्या है अर्पण। भूल खुशियों को बांटे सभी को, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा की जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, करते पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे,
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू। After prayer, now it is time for Gayatri month, so I want to call Pari Kumari and Aisha Kumari. Please come on the stage. Ready for the Gayatri month. Om Bhurbhuvah Swaha. ओम भूर्भुवः स्वः Dassavidurvarenyam. तत्सवितुर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi. भर्गो देवस्य धीमहि Dhiyo yo na prachodayat. धियो यो न प्रचोदयात्। Om Bhurbhuvah Swaha. ओम भूर्भुवः स्वः Dassavidurvarenyam. तत्सवितुर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi. भर्गो देवस्य धीमहि Dhiyo yo na prachodayat. धियो यो न प्रचोदयात्। Om Bhurbhuvah Swaha. ओम भूर्भुवः स्वः Dassavidurvarenyam. तत्सवितुर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi. भर्गो देवस्य धीमहि Dhiyo yo na prachodayat. धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you. After Gayatri Mandir, now it is time for play, so I want to call Anand Kumar from Standard 2 class. Please come on the stage. Ready for the play. India is my country. India is my country. All Indians are All Indians are my brother and sister. my brother and sister. I love my country I love my country and I am proud and I am proud of its rich of its rich and heritage. and variety. I shall always I shall always strive to be strive to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, I shall be my parents, teachers, teachers, and all the respect and all the respect and treat everyone and treat everyone with courtesy with courtesy to my country to my country and my people. and my people. I pledge my devotion I pledge my devotion in their well-being in their well-being and prosperity, and prosperity. alone as my happiness. Alone lies my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. After prayer, now it is time for thought, so I want to call Tulsi Kumar from Standard 2 class. Please come on the stage. Ready for the thought. अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखे, हार मानना नहीं। थैंक यू। After thought, now it is time for my valorous speech, so I want to call Principal Sir. Please come on the stage.
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। देखिए आप लोग के सामने नंदिनी तुलसी कुमारी ने एक अच्छा सा थॉट बोली है। उसका विश्लेषण इस तरीके से है कि अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो। अगर आप थक जाओ तो आराम करने के लिए सीखो, हार मानना नहीं। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में आप किस चीज से थक जाते हो? पढ़ाई से, खेल से, और भी जो एक्टिविटीज है उससे हम लोग थक जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमारा लक्ष्य का जो प्राप्ति करने का जो समय होता है कि इतना समय में यहाँ तक हमको मान लिया जाए 100 मीटर का रनिंग है और 100 मीटर का रनिंग का समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। अगर हमको 20 सेकेंड लग रहा है तो प्रत्येक दिन अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ टाइमिंग धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। अगर 100 मीटर का रनिंग है तो फर्स्ट डे अगर हमको 20 सेकेंड लग रहा है, लेकिन फिर पुनः प्रयास करते हैं तो वो जो 20 सेकेंड का जो टाइम है वो आपको घटकर 19 सेकेंड में आ जाएगा। फिर और प्रयास करेंगे तो 18 सेकेंड में आ जाएगा, और प्रयास अत्यधिक करेंगे तो 17 सेकेंड में आ जाएगा। और आपका टाइमिंग दिया हुआ है कि 100 मीटर जो रनिंग है वो 15 सेकेंड में पार करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंत तक जेते जेते 15-16 तक आ जाता है, उसके बाद हम लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, अपने आप से हार मान लेते हैं कि अब हमसे ये कार्य नहीं होगा, हमसे रनिंग कंप्लीट नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग के क्लास में 5 से 10 सब्जेक्ट मान लिया जाए चलता है, तो उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट नॉर्मल रहता है, इजी रहता है, या जो हमें इजी लगता है उसे फटाफट आगे कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होता है उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने माइंड से भी हटा देते हैं और धीरे धीरे उसको क्या कर देते हैं, छोड़ना प्रयास कर देते हैं कि चलो हमसे नहीं होगा। लेकिन ये बात गलत है। कहने का मतलब हुआ कि अब जब भी आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा तो उसको छोड़कर कोई दूसरा काम कर लीजिए, खेल लीजिए, माइंड रिफ्रेश कर लिए। मान लिया जाए कोई मैथ है, एक मैथ दिए मैम आपको बनाने के लिए घर में, और वो मैथ नहीं बन रहा है, तो उससे हार नहीं मानना चाहिए इंसान को कि हम अपना जीवन ही मेरा समाप्त हो गया, अब हमसे एक मैथ नहीं बना तो चलो हम कुछ के लायक नहीं है, हम कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कहने का मतलब हुआ कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगा, लेकिन उससे निपटारा करने के लिए आपको अपने माइंड पे ज्यादा बल नहीं देना है। जब भी आपको महसूस होए कि हमसे ये कार्य नहीं होगा तो उस समय उस काम को छोड़ देना चाहिए और पुनः फिर नेक्स्ट डे, फिर अगला दिन आपको समय मिलता है तो फिर से उस कार्य को प्रयास कीजिए, फिर से उस कार्य को क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और जब नेक्स्ट समय जब आप अगला दिन जब बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस दिन मेरा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए कितना बार मैथ में क्या होता है कि आप लोग लिख रहे हैं कि 2 जोड़ 2 लिखा गया है 2। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है आदमी को, कभी कभी अपना मनोवैज्ञानिक ही ऐसा है कि हम लोग बोलते कुछ और वहाँ कोई दिमाग में जो चलता रहता है वो बात क्या हो जाता है, लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। तो उस समय माइंड आपका जो सर्कुलेट नहीं रहता है, इस कारण से वहाँ गलतियां शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी कठिनाइयां होता है उससे ये नहीं सोचना है कि ये हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पे बनाने का कोर्स करेंगे, जब भी आप उस पर बल देंगे तो वो कार्य आपको संपन्न हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
अब बताओ रेस के बारे में बताएं कि 15 सेकंड में अगर 100 मीटर का रेस तय करना रहता है किसी व्यक्ति को, तो फर्स्ट डे किसी से होगा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक दिन अपना डाइट को बढ़ाते हैं, अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, और एनर्जी लेवल को बढ़ाकर अगले दिन क्या करते हैं, अगले दिन और भी प्रयास करते हैं कि मैं 15 सेकेंड 17 सेकेंड 16 सेकेंड जो भी समय लगे वो लगता है, और प्रयास करते करते एक दिन वो क्या करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? लेकिन जो व्यक्ति डर जाता है, जो व्यक्ति हार मान लेता है, वो कभी भी वो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी वो रनिंग जीत नहीं सकता है, कभी भी वो जो मैथ छूटा हुआ है वो उससे कभी बनेगा नहीं, वो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहेगा। आज के डेट में बच्चे क्या हैं कि अगर उससे मैथ बन रहा है तो उसे बहुत मजा आता है, लेकिन एक मैथ बीच में अटक जाता है तो उसका माइंड जो होता है लगता है कि अब हमारे लिए पढ़ना ही क्या है, मुश्किल है, मैथ हमारे लिए ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितना जिस चीज में प्रयास करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना आपको वो विषय सार्थक होते चला जाएगा, अच्छा होते चला जाएगा। इसलिए इस थॉट के माध्यम से कभी भी आपको किसी भी चीज का जरूरत पड़ता है, किसी कार्य को करना रहता है, तो उसमें कभी ना बोले, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी कार्य आपको दिया जाता है उसमें आप बोलिए कि मेरे को करना है तो करना है। आप कोई भी काम को लेंगे ही नहीं तो काम को कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बोला जाएगा कि आप मैथ भी बना लीजिएगा और साइंस को भी बना लीजिएगा, तो आप बोलिएगा नहीं सिर्फ हम मैथ लेंगे साइंस लेंगे ही नहीं। तो जब साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? इसलिए कभी अपने आप में नहीं बोलना है, किसी भी कार्य में बोलना है हाँ सर प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तभी ना पता चलेगा कि ये काम हमसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब काम हम कर ही नहीं रहे, हम स्कूल आ ही नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं रहे, बच्चा के बीच में संवाद कर ही नहीं रहे, तो हम खाली बैठ के बोल दिए कि सर ये काम हमसे नहीं होगा। हम बच्चों के बीच में आते हैं, जो भी आपका त्रुटियां रहता है वो सुनते हैं, समझते हैं, हम भी पुस्तक को पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। हम भी अध्ययन करते हैं, हम भी स्टडी करते हैं, तभी आप लोग के बीच में कुछ भी बताते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी चीज रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी काम आपके माता पिता करने के लिए कहें तो उसको नहीं कहकर नहीं टालना चाहिए, उसको हाँ में परिवर्तन करना चाहिए। और हाँ जब बोलते हैं तो उसको प्रयास करने के लिए कीजिए। अगर ठीक है फर्स्ट चांस में नहीं बनेगा, कुछ तो कुछ जरूर होगा, उसका क्वेश्चन तो हम लिख पाएंगे, क्वेश्चन तो 2 बार पढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को हम लोग ना बोलेंगे, और जो भी कार्य दिया जाता है उसको करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर हो गया तो हो गया। ऐसे जो व्यक्ति प्रयास करता है वो कभी असफल नहीं रहता है, वो सफल ही होता है। इसलिए आपको हर हमेशा जब भी आगे आपको लगता है कि हमसे ये कार्य नहीं होगा तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, नेक्स्ट डे वो काम को कर लीजिए। नेक्स्ट डे नहीं होता है और भी अगले नेक्स्ट डे काम कर लीजिए, समय लीजिए, क्या दिक्कत है? समय अपना है, आपके पास तो समय है। प्रत्येक दिन समय आता है, प्रत्येक दिन हम आते हैं, इस टाइम आते हैं आप लोग के सामने। जो भी हमको समझ में आता है कि आपके हित के लिए ये बातें अच्छी है, ये वचन अच्छा है, तो आपको हम 2 बात बताते हैं। तो जो हमारे पास स्टेमिना है वो हम करते हैं। आप लोग के पास जो स्टेमिना है पढ़ने का वो करिए, जब लगता है कि ये काम नहीं होगा नेक्स्ट डे कीजिए, बस यही है। आज फिर भी मैं कल भी प्रश्न आप लोग के सामने रखा था कि अगर कोई भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी भी तरह का तो वो डायरेक्ट माइक के थ्रू पूछ सकते हैं। किन्हीं को अपने जीवन या रूटीन में, जीवन जीने का जो रूटीन होता है, पढ़ाई का जो रूटीन होता है,
वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें, कौन सा टाइमिंग में पढ़ें। क्योंकि कल भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हम देखे कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, याद करके नहीं आते हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ, जब मैं चेक कर रहा था कल, तो हमको ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखने का जो HW होता है वो कर लेते हैं, लेकिन जो याद करने का जो मिलता है वो कभी भी उसको एक बार भी ट्राई नहीं करते कि हमको क्या मिला है। बात सही। जो स्कूल में रटवाते हैं ना, और जो हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, जितना टीचर्स आपको बताते हैं उतना ही आप बोलते हैं, उसके आगे बोलते नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग को जो लिखने का काम दिया जाता है वो भली बात ही कर लेते हैं, लेकिन जो रिमेम्बर करने के लिए मिलता है, याद करके लाने के लिए मिलता है, उसको हम लोग एक बार भी प्रयास नहीं करते हैं। और मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं, जो बताएं, जो सुनाएं, वही सब बच्चे हैं 5-10 के संख्या में हैं जो लिख कर भी लाते हैं और याद करके भी लाते हैं। बाकी लोग तो बैग रखते हैं और फिर पुनः बैग लेकर क्या करते हैं, चले आते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कुछ भी आपको नहीं कर सकते। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा दवाई नहीं है जो हम लोग देंगे आपको डायरेक्ट फायदा कर जाएगा। आपके लिए दवाई एक ही है कि आप जितना मेहनत करो, जितना टीचर्स क्लासेस में बताते हैं, जितने भी आपके वर्ग में बताया जाता है, उसको रिवाइज करो, जितना भी है रिवीजन करो। जो भी याद करने के लिए मिलता है उसको लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो, तभी संभव है। अर्थात प्रत्येक दिन क्या होगा, प्रसादी मिलेगा, दवाई चलेगा। यहाँ दवाई आप लोग का तो पता है कि क्या दवाई चलता है। कल सब लोग को दवाई मिला था ना, आज तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा किया होगा। क्योंकि जब हम गाड़ी पे आ रहे थे तो देखे कि कुछ बच्चे क्या है कि अपना बुक्स निकाल कर पढ़ाई कर रहे थे। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ है। मेरे को देखकर अच्छा लगा कि ठीक है भाई साहब, आपको अगर मान लिया जाए लगता है, डाउट है, तो कहीं पे भी पढ़ लो। पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है कि हाँ आराम से तोशक तकिया पे ही पढ़ना है। जब भी आपको समय मिले तब आप रिवीजन कर लो। किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड? एनी हाउ? कोई भी बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं, कुछ पूछना है? कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू। After my various speech, now it is time for national anthem and national song. Ready for the national anthem. नायकी जय है भारती भाग्य विधाता, पंजाबी सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उचिका देवंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल चलती तिरंगा, सब सुबह नामे गाए, सब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायकी जय है भारती भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे वंदे मातरम। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। एपीजे अब्दुल कलाम की जय। एपीजे
Abdul Kalam ki. जय। Now the assembly is exact. Please go to your classes after counting. Thank you.